Assalamu alaikum everyone. I hope your preparations are going well. Acha beta, I have received a lot of queries related to the syllabus change. So I thought I should make a video. And I know it's very challenging for you because you people are preparing for the first time in May June examination and the syllabus is changed. But there is no need to worry, don't be panic. Alright. So I'm going to give you a very quick summary in this video that what are the main changes, and after this video I'm going to upload more videos to discuss each and every change in detail. Alright. अच्छा जी, so main changes क्या है? You will be given the list of formula with each paper now. Now you need to focus more on the working because working के बेटा बहुत ज़्यादा marks हैं, ठीक है? So make sure one thing, whatever is in your mind related to the question, just write it down, ठीक है जी? आपने वो लिखना है बेटा because now you will get more marks for the working. Paper 1 marks they have been increased to 100, but duration is kept same because now you will get more marks for the working. On the other hand, paper 2 marks are same, but the duration is decreased because now the paper 2 questions would be comparatively different as compared to the previous pattern. Beta, two mainly new topics have been added into your syllabus. One is exponential growth and decay and second is surds. ठीक है जी? उसके बाद दो मेन टॉपिक्स आपके रिमूव हो गए हैं, लोसाई एंड मेट्रिसेस. Mostly students they get confused between matrix and column vector. Beta, matrices are removed but column vectors are still part of your syllabus, and we use column vectors in vectors and we also use column vectors in translation. Alright, so translation में सिर्फ column vector use होगा. Transformation matrices are removed but column vector is still there in your syllabus. So total beta there are 11 topics in which the new content is added. ठीक है, अब देखें दो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं बट जो न्यू कंटेंट है ना बेटा वो 11 टॉपिक्स में ऐड हुआ है. दीज आर योर एग्जिस्टिंग टॉपिक्स. नंबर्स में रेसिप्रोकल्स आर एडेड. इट्स वेरी इजी टू टेक द रेसिप्रोकल. रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस नाउ. एल्जेब्रा में यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 एक्सप्रेशंस. प्रीवियसली वी वर डूइंग इट फॉर 2 एक्सप्रेशंस. देन इन एल्जेब्रा वी हैव टू फैक्टराइज ax³ प्लस bx² प्लस cx. ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस को आपको फैक्टराइज करना. अगेन दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन टेक x एज कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा. सो देर इज़ नॉट अ वेरी बिग चेंज. इन इक्वालिटीज़ में देर आर 2 चेंजेस इन द कन्वेंशन. नंबर 1, यू शुड नो हाउ टू रिप्रेजेंट एन इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन. एंड सेकेंड ग्राफिकल कन्वेंशन क्या आई है बेटा, वो ये आई है कि नाउ यू हैव टू शेड द अनवांटेड रीजन. ठीक है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर previously अगर मैं लिखती थी कि x is greater than 2 then it means the region which is right to this vertical line should be shaded, but now the unwanted region should be shaded, so that's why I've shaded the left region. The next change is in graphs in practical situation. Practical situation के graphs का क्या मतलब है, like you are talking about travel graphs, conversion graphs. इसमें बेटा आपको gradient find करना होगा. So this is not something which is new, या आप पहले भी कर चुके. You know how to draw a tangent to the graph at any point and how you can find out the gradient at that particular point. So ये न्यू नहीं है, ठीक है जी, ये आप पहले से कर चुके हैं. मेजर चेंजेस आर इन बेसिकली द फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस के टॉपिक में बेटा यू हैव गॉट मेजर चेंजेस. ठीक है जी, सबसे पहला चेंज जो फंक्शन के ग्राफ्स में है वो ये है कि यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ, रिकॉग्नाइज और इंटरप्रेट दीज पर्टिकुलरली 2. ठीक है, ये दो बेटा इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए. यू शुड नो हाउ टू recognize them because draw करना is not difficult. draw में what you need to do, you will be given a table और table से आपने क्या करना है, table से आपने simply points को plot करना है and then you have to connect them with a smooth hand curve. but इनकी shape इनको recognize करना आपको आना चाहिए because you have not done this previously. उसके बाद the next change is in the exponential functions. the expression has been revised. पहले बेटा ये आपका एक्सप्रेशन होता था. नाउ अ कांस्टेंट सी हैज़ बीन एडेड. ठीक है, अब इस कांस्टेंट सी की क्या इफेक्टिवनेस है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आई डिस्कस दिस इन द इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ एंड इंटरप्रेट ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके. ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, उसके ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे. वी शुड नो कि उसके ग्राफ की क्या इंटरप्रिटेशन है, उसका वाई इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है जी, next we have to sketch curves. This is something which is new to your syllabus because previously you know how to draw the graphs but now this time it's about sketching. Sketching क्या होती है बेटा, sketching में आपको shape का idea होना चाहिए. ठीक है, कि what kind of shape they have, like linear, quadratic, cubic, reciprocal, exponential. सबके sketches आपको आने चाहिए. In quadratic functions you should typically know what are the turning points, how we can calculate them and roots क्या होते हैं बेटा, what is symmetry.
ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। स्पेसिफिकली फिर क्यूबिक में आ जाएँ तो यू शुड नो व्हाट आर द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन, व्हाट काइंड ऑफ शेप इज़ द क्यूबिक फंक्शन। रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एसिम्प्टोट्स। अगेन दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। एसिम्प्टोट्स का आइडिया होना चाहिए एंड यू शुड नो व्हाट आर देयर इक्वेशंस एज वेल। फंक्शंस में जाएंगे तो वी शुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज, दैट व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन एंड रेंज। आफ्टर दैट यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय दीज डायग्राम्स। सो ये बेटा मैपिंग डायग्राम्स है, ठीक है जी, इनको मैपिंग डायग्राम्स कहते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। आफ्टर दैट फंक्शंस में कॉम्पोजिट फंक्शन ऐड हुआ है। दिस इज़ वेरी इजी, आसान है बेटा कॉम्पोजिट फंक्शन। ज्योमेट्री में देर आर few geometrical terms which have been introduced. I hope so you all are familiar with all of the terms except from frustum, ठीक है। frustum के साथ बेटा आप familiar नहीं होंगे। frustum कैसी shape है? So basically this kind of shape is called as frustum, in which a small cone is cut from the bigger cone, ठीक है। बड़ी कोन से एक छोटी कोन को आपने सिंपली कट कर दिया। इट इज़ एक्जैक्टली द सेम एज द लैम्प शेड। जो आपका बेटा लैम्प शेड होता है ना साइड टेबल पे, ये बिल्कुल लैम्प के शेड की जो है वो शेप है। सेमी सर्कल आप सबको पता है, इट मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। मेजर एंड माइनर वी हैव बीन यूजिंग दिस इन सेक्टर, यू शुड नो दिस इन सेक्टर एंड सेगमेंट बोथ। तो सेगमेंट में थोड़ा सा आपको आइडिया देना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट वी हैव हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज बेसिकली हाफ ऑफ द स्फीयर। स्फीयर एक 3D शेप है, तो उसका हाफ अगर आप ले लेंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एज हेमिस्फीयर। सर्कल थ्योरम्स में वन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन एडेड, alternate segment theorem. This is the property related to the angle between the tangent and the chord, ठीक है, ये आपका ऐड हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैलकुलेशन ऐड हुई है बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। इसमें आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन यू कैलकुलेट द एंगल। फिर मेंसुरेशन में क्या चेंज आया है? इन मेंसुरेशन द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म इज रीडिफाइंड, ठीक है। अब प्रिज्म क्या है? प्रिज्म कोई भी ऐसा सॉलिड है विच हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच मीन्स आप उसको जब कट करें तो यूनिफॉर्म शेप बन रही हो। सो आप कोई भी 2D शेप, सेक्टर, ट्रपीजियम, कोई भी 2D शेप आप यूज़ करके अगर आप उसी 2D शेप को स्टैक करके एक 3D शेप बना लें और थर्ड डायमेंशन उसको दे दें तो आपका प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल्स को स्टैक करके तो प्रिज्म हम देखते हैं, दैट इज़ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। नाउ यू कैन मेक प्रिज्म्स यूजिंग ट्रपीजियम, यू कैन मेक प्रिज्म यूजिंग अ सिलेंड्रिकल सेक्टर, ठीक है। एक सेक्टर को भी यूज़ करके आप प्रिज्म बना सकते हो। तो प्रिज्म की डेफिनेशन बस थोड़ी सी रीडिफाइंड हुई है एंड नाउ यू कैन गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिज्म, जिसमें आप बेस एरिया को देखेंगे और बेस एरिया के अकॉर्डिंगली यू विल परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस। देन यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए वी डोंट हैव टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला, वी विल सिंपली यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन, ठीक है। कोन का ही कॉन्सेप्ट इसमें बेटा अप्लाई होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन रिमूव, ठीक है। सो सम कॉन्टेंट डेफिनेटली हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। सो वो कॉन्टेंट क्या आपका बेटा रिमूव है? सबसे पहले प्रॉपर सबसेट्स, दे हैव बीन रिमूव्ड। सबसेट्स आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट नॉट प्रॉपर सबसेट्स। देन ये रिमूव हुआ है कि इफ़ यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज अ क्वांटिटी बाय अ गिवन रेशो, तो ये आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। डायल्स को कभी कभी आपको रीड करना होता था, लाइक इस तरह के आपके डायल्स दिए होते थे और एंड यू हैव टू रीड दोज डायल्स, सो दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। ये फंक्शन की नोटेशन रिमूव हो गई है बिकॉज दिस नोटेशन एक्चुअली मीन्स y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो अब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही आप यूज़ करेंगे, यू डोंट हैव टू यूज़ दिस नोटेशन एनी मोर। उसके बाद एनी ज्योमेट्रिकल फिगर जो ट्राइंगल से कंस्ट्रक्ट नहीं होती वो सब आपके सिलेबस से रिमूव हो गई है, ठीक है। यू कैन नाउ ओनली कंस्ट्रक्ट दोज फिगर्स जिसमें आपकी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आपके रिमूव हो गए हैं, बट मेक श्योर वन थिंग, कॉलम वेक्टर इज स्टिल देयर, ठीक है। कॉलम वेक्टर आपका ट्रांसलेशन में यूज़ होता है विच टेल्स यू अबाउट द ट्रांसलेशन। बिकॉज लोकस रिमूव हो गया तो बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर्स ये सब आपके सिलेबस से रिमूव हो गए। हाउ टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर सिलेबस। यू रिमेंबर SSS, SC, ये रूल्स होते थे आपके जिसके थ्रू आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते थे, दे हैव बीन रिमूव्ड। आफ्टर दैट हैट नोटेशन होती थी बेटा एंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ABC में B इज़ द वर्टेक्स जिस पे आपका एंगल है। सो दिस नोटेशन हैज़ बीन रिमूव्ड। नाउ वी विल सिंपली यूज़ एंगल, वर्ड एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया है और ABC को आप एज इट इज़ लिखेंगे। इट इज़ टोटली अंडरस्टूड के जो बिटवीन वाला आपका अल्फ़ाबेट है इस पर आपका वर्टेक्स है, ठीक है जी। सो दीज वर द बेटा मेजर चेंजेस। इसके बाद आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ जिसमें मैं एक एक चेंज को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।